So good morning to all of you students. Let's continue with the chapter playing with numbers. Today we have to start exercise 16.2. Open it, page number 260. First question. If 2, 1, 1, y5 is a multiple of 9, where y is a digit, what is the value of y? Pay attention. There is a number 2, 1, y5. Y कोई number है. It is a digit. It is a single digit. We have to find what is the value of y, and it is given that this number is a multiple of 9. Multiple of 9 means ये जो भी number है, it is divisible by 9. इसको जब हम 9 से divide करते हैं तो remainder 0 आता है. So it means how to do this? देखो, what is the divisibility of 9? Divisibility of 9 is the sum of all the digits of that number. जो भी प्लस करके आंसर आता है वो नंबर 9 का मल्टीपल होता है. इन्होंने बोल दिया है कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे sum of digits 2 plus 1 plus y plus 5. नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे. 5 plus 1 6, 6 plus 2 8. What you get? 8 plus y. Now it is a multiple of 9. आप क्या करोगे? जो भी आपका सम आया है उसको जो 9 का टेबल है उसके साथ इक्वेट करोगे. 8 plus y 9. 9 का 9 2 are 18. 8 plus y 27. बस, ज्यादा नहीं करना, 2 3 तक. ठीक है. From here we will find the value of y. Look here. Y is equal to 9 minus 8 1. Y is equal to 18 minus 8 10. And y is equal to 27 minus 8 is 19. But what is the value of y? Y is a single digit number. It cannot be 2 digit. तो इसका मतलब ना 10 हो सकता है ना 19 हो सकता है. What is the value of y? The value of y is 1. Therefore we will write, therefore y is equal to 1. आप चाहे ये 27 वाला ना भी करो, क्योंकि जब दूसरे स्टेप में ही आपको पता चल गया कि 2 डिजिट आंसर आ गया, तो उसके बाद अगर आप मल्टीपल ऑफ 9 लिखोगे, इट विल बी मोर एंड मोर नंबर, ग्रेटर नंबर ओनली. समझ आ गई? Whatever digits are given to you, you have to add it, and यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 9 लिखा है तो 9 के टेबल से इक्वेट करोगे. फाइन. जैसे मान लो, सपोज, अभी लिखना नहीं है, समझो. सपोज यहाँ पर हमारे पास नंबर होता 2 2 y 1, तो प्लस करके क्या आता? 5. 5 plus y is equal to 9. 5 plus y is equal to 18 minus 5 13 ही होता. नहीं, एक मिनट. 4 5 5. ये क्या आएगा? 12. 12 plus y 9. 12 plus y 18. 12 plus y 27. अब यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव आएगी. 9 minus 12 नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती. 9 minus 12 is minus 3. Y cannot be negative. 18 minus 12 is 6. And 27 minus 12 is what? 8 7 15. तो मतलब यहाँ पर y की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आएगी? 6. और क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर हो जाएगा. ये नोट कर लो. सेकंड क्वेश्चन. 3 1 z 5. Now what is the number given to you? 3 1 z 5. Now let us do the sum of digits. 3 plus 1 plus z plus 5. 5 6 7 8 9. क्या आया हमारे पास? 9 plus z.
Now look here on the board. 9 plus z and it is written in the question it is a multiple of 9. तो जो भी आपका सम है उसको 9 के टेबल के साथ इक्वेट करोगे. 9 plus z 18, 9 plus z 27. छोड़ दो अभी यहाँ पर. This implies z is equal to plus 9, 9 minus 9, 0. Z is equal to 18 minus 9, 9. Z is equal to 27 minus 9, 18. अब ये 18 तो नहीं हो सकता because it is a 2-digit number. So it implies what can be the value of y? The value of y, 0 is also a single digit, 9 is also a single digit. Therefore, y can be 0 or y can be 9. या तो ये नंबर हो सकता है 3105 या फिर ये नंबर हो सकता है 3195. दोनों नंबर जो हैं वो 9 से डिविजिबल होंगे. Z. ठीक है, नोट डाउन. एनी डाउट? प्रबल, आज कोई डाउट नहीं है? हैं? क्लियर है सब? ठीक है, अच्छी बात है. थैंक गॉड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. यस गुरनूर. एक्सक्यूज मी मैम. मैम जो क्वेश्चन में है मैम सिर्फ 1 डिजिट नंबर ही होगा? हाँ जी, सिर्फ 1 डिजिट. अ डिजिट लिखा है ना क्वेश्चन में. Z is a digit, Y is a digit. ओके मैम. Now next question, third question. What is given? 2 4x is a multiple of 3. So again multiple of 3 में भी sum of digits करते हैं. 2 plus 4 plus x, 6 plus x. अब मल्टीपल ऑफ 3 है, बोर्ड पे देखेंगे बेटा. 6 plus x is equal to 3. 6 plus x is equal to 6. 3 का टेबल. 6 plus x is equal to 9. अपने आप आपके दिमाग में ही आपको करते करते ही आइडिया लग जाएगा कि 15 minus 6 क्या होता है. 15 minus 6 9 होता है. तो आप एक और करोगे. जब तक आपको 2 डिजिट नहीं मिलता तब तक आपने करके दिखाना है. देखो x इज इक्वल टू, मैं माइनस नहीं कर रही, एक स्टेप में करके दिखाऊंगी. 3 minus 6 इज -3. यहां पर x क्या है? 0. x is 9 minus 6 3. 6. 15 minus 6 9. 18 minus 6 is 12. Now नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता. Therefore the value of x can be 0, 3, 6, 9. इन चारों में से कोई भी ये वैल्यूज हो सकती हैं. ये देखो, नोट कर लो. लास्ट वाला खुद करोगे, सेम है. 6 7 8 9. 9 plus z को 3 से करोगे, करते जाओगे जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता. 3 और 6 से कंपेयर करके नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, वो रिजेक्ट हो जाएंगी.
यस गुरनूर। मैम ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो मैम, नेटवर्क कनेक्शन लॉस हो गया था। क्यों? अपना नेटवर्क कनेक्शन सही करो बच्चे, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखो। फिर भी मैं बोल देती हूँ एक बार, जैसे पहले वाले क्वेश्चन 2 पार्ट किए थे वैसे ही ये है। नाउ हियर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी 3 का क्या रूल होता है? दैट इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसको प्लस किया है, 2 + 4 + 6 6 + x 3 के टेबल के साथ कंपेयर किया। 3 के टेबल के साथ जब कंपेयर किया हमारे पास ये वैल्यूज आई -3 0 3 6 9 12। तो x की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है ना 2 डिजिट, सो दीज कैन बी द वैल्यू ऑफ x। आगे ये भी आता होता है कई बार, यहाँ पर लिखा है ना फाइंड द वैल्यू। समटाइम्स द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नंबर। ध्यान से सुनो, व्हाट विल बी द नंबर, तो फिर आपको नंबर लिखना है, जैसे 2 4 0 2 4 3 2 4 6 2 4 9 ऐसे ऐसे करके। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि अच्छा चलो हाँ जी ये वही क्वेश्चन है, आधा कर उतना ही करके जितना रूटीन में हमने करवाया है बुक में उतना ही करके छोड़ दो। समटाइम द टीचर सेज what is the value of x and hence write the numbers, then you have to write the numbers also by substituting that value। ये आया प्रबल। हाँ जी प्रबल जी प्रेजेंट। मैम एक जॉन मैम ट्रेडिंग में मैम जैसे नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो वाले मैम, जैसे उन्होंने सीधा सीधा नहीं क्वेश्चन लिखा हुआ, चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन इफ सुंदरबन हैड चूजन नंबर चूजन बोल बिलो। रहा है क्या बोल रहा है ऐसी प्रबल? आएंगे कि आप एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? मैम 251 पेज पे सेकंड राइट इस पे पहले मैम पेज। क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना हाँ 251, तो मैम वो ऐसी आएंगे कि आप बना के डालोगे क्वेश्चन। वैसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। ये तो एग्जाम्पल के साथ उन्होंने रिलेट कर दिया, जैसे मैंने लिखवाया वैसे। ओके यस बानी। मैम वो फोर्थ का आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था। स्पीक लाउडली बानी। मैम वो फोर्थ का आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था। बोलो। z is equal to 6 9 0 and 3। z is equal to 6 6 9 3 and 0। 6 9 3 and 0। okay, all right students, so she's saying z is 0 3 6 and 9। you all do yourself and check your answer। fine, so this is all about playing with numbers। now come to the next chapter। this is chapter number 9, algebraic expression and identities, page number 137। first of all we will be doing chapters and after that we will see according to the time that whether we have to do the assignment or not। yes rhythm। मैम वो असाइनमेंट का ही पूछना था, इसकी है बेटा मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। पहले हम हमेशा असाइनमेंट करते थे ना, अभी ऑनलाइन में पहले हम अपना सिलेबस करें, ठीक है। उसके बाद फिर असाइनमेंट, अगर हमारे पास टाइम बचेगा फिर हम असाइनमेंट करेंगे, नहीं तो हम रिवीजन करेंगे। सो वी हैव टू डू द चैप्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो राइट स्टूडेंट्स, algebraic expressions, open everyone page number 137। write down the definition of algebraic expression। write down the combination of, I'm not going to write, I will be dictating, the combination of variables, constants, the combination of variables, constants, coefficients, comma डालकर, the combination of variables, comma constants, comma coefficients along with mathematical operations। mathematical operations कौन से हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। along with mathematical operations
is called an algebraic expression. The combination of variables, constants, coefficients, along with the mathematical operations is called algebraic expression. For example, general expression कोई भी दे देंगे. जैसे इसका मतलब क्या है? 4x plus 7y plus 9. Here x is the variable, y is the variable, 9 is the constant, 7 is the coefficient of y, and 4 is the coefficient of x. This is what? This is the algebraic expression. X plus 7, x square plus 4. All this is the example of an algebraic expression. You can just note down a definition के साथ लिख देना. Yes, Manasvi. Ma'am, please repeat the definition. मनस्वी 3-4 बार मैं बोल चुकी हूँ definition. Now you ask from anyone. I will not repeat. Page number 138. Try these. सबसे ऊपर. Give 5 examples of algebraic expressions containing one variable and 5 examples of expression containing 2 variables. So here, look here on the board. Examples. With one variable. X plus 7, 4x, x plus 8, x plus 9, x plus 10, z plus 4, कुछ भी. Here in all the expressions, all are different. X plus 7 अलग है, x plus 8 अलग है. Here how many variables we are adding? Only one variable. So no need to go into complex expression. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देने की जरूरत, अलग अलग देने की जरूरत. सिंपल लिखो. x plus 7, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5. सब अलग अलग हैं. The all are algebraic expression with one variable. अब इधर देखो. With the 2 variable, very simple. X plus y, 2x plus y, x plus 4y, z plus t, t plus q. Okay. All are the algebraic expression. इसमें चाहे आप constant भी ले लो. X plus y plus 7, 2x plus y plus 9. How many variables here in this expression? We have 2. Here 1. Please note down. Any doubt you can ask. नेक्स्ट. ये बेटा अभी क्वेश्चन को सर्कल कर लो, ये बाद में करेंगे. शो ऑन द नंबर लाइन x x minus 4 2x plus 1. ठीक है, पहले आगे सिंपल चीज करेंगे, फिर बाद में ये करवाऊंगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट. ट्राई दिस. जैसे ये है एक्सप्रेशन, ये x plus y plus 7. इसमें एक होता है अलजेब्रा में, देयर इज अ वर्ड टर्म्स. टर्म्स
तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स. The terms are always separated by positive sign और negative sign. तो यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 3. यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 3. 1 2 3. यहाँ कितनी है? 2. 1 2 1 2 1 2. ठीक है, ऐसे. ये नेक्स्ट ट्राई दिस है. आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर कोफिशिएंट लिखा है. कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पर है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. x square y square minus 10x square y plus 5xy square for each term. ये कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4. There are 4 terms. अगर इस टर्म की बात की जाए, यहाँ पर अगर हम कहें कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, बोर्ड पे देखो बेटा प्लीज. तो y स्क्वायर को कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? y स्क्वायर. बट हियर इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली नहीं पूछा हुआ कि y किसका, इस टर्म में इसका कोफिशिएंट बताओ. सिर्फ लिखा है फाइंड द कोफिशिएंट. तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. सो वी विल राइट, इधर देखो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर y 5xy स्क्वायर माइनस 20. x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? 1 इज 1. यहाँ पर x स्क्वायर y के साथ क्या है? माइनस 10. यहाँ पर 5. And what is minus 20? Minus 20 is the constant. Coefficient पूछा है तो बस ये आंसर है. This is the coefficient. यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के साथ राइट हैंड साइड पे जो पैराग्राफ है वो पढ़ो. The numerical factor of a term is called its numerical coefficient or simply coefficient. The coefficient, आगे वाली लाइन पढ़ेंगे. The coefficient in the term 7xy is 7 and the coefficient in the term minus 5x is minus 5. ठीक है, एनी डाउट? आगे लिखो, गिव द हेडिंग. अब मैं स्लो स्लो बोलूंगी, लिख साथ साथ लिख लेना. Will not, I am not going to repeat it again and again. Write down types of polynomials. Type of polynomial. Now students, see here. Give the heading. Types of polynomials. 1 minute.